हेलो गाइस, हरे कृष्णा। आज जो बात बोलने को जा रहा हूँ वो है एकादशी का बारे में। 2024 ये पहला एकादशी है ये सालों का। 7 जनवरी संडे रविवार। मैं दुबई का टाइम में बोल रहा हूँ और उसका पारोनी का टाइम है 7:07 टू 10:38। ये एकादशी का पारोनी का टाइम है। उसका बाद मंडे का दिन बीच में होता है संडे, उसका पहले होता है सैटरडे। सैटरडे का दिन भी भेज लेना है और संडे का दिन एकादशी है। ओके, 7 जनवरी संडे का दिन एकादशी और टाइमिंग मतलब मंडे का दिन इसका पारोनी का टाइम है 7:07 टू 10:38। 7:07 से 7:38 তক। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে 2024 সালের 7 জানুয়ারির রবিবার একাদশী আছে দুবাইয়ে টাইমে। আর পারণির টাইম আছে 7টা 7 থেকে 10টা 38 এর মধ্যে পারণি করতে হবে। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज मतलब ये एकादशी के बारे में, एकादशी का महत्व का बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले बांग्लाते बोलता हूँ, उसका बाद हिंदी में बताऊँगा। ये जो एकादशी का महत्व जो है, पौष मायना कृष्ण पक्षेर एकादशी का नाम सफला। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণ সংবাদে এই তিথি মহত্ব বর্ণিত হয়েছে। যুধিষ্ঠির বললেন, হে প্রভু, পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম বিধি এবং পূজা দেবতা নিয়ে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে মহারাজ, আপনার প্রতি স্নেহবশত সেই ব্রত কথা বলছি। এই ব্রত আমাকে যে রকম সন্তুষ্ট করে, বহু দান দান দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞাদির দ্বারা আমি সেই রকম সন্তুষ্ট হই না। তাই যত্ন সহকারে এই ব্রত পালন করা কর্তব্য। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীর নাম সফলা। নাগদের মধ্যে যেমন শেষ নাগ, পক্ষীদের মধ্যে গরুড়, মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ, দেবতাদের মধ্যে নারায়ণ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত ব্রতের শ্রেষ্ঠ একাদশী ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ, যারা এই ব্রত পালন করেন তারা আমার অত্যন্ত প্রিয়। তাদের এ জগতে ধন লাভ ও জড়জগতের মুক্তি লাভ হয়। হাজার হাজার বছর তপস্যার ফলে যে ফল লাভ হয় না, একমাত্র সফলা একাদশীতে রাত্রি জাগরণের ফলে তা অনায়াসে प्राप्त हुआ जाए। इसका हिंदी मीनिंग मैं बोलता हूँ। पौष मायना कृष्ण पक्ष का जो एकादशी है उसका नाम है सफला। ब्रह्मांड पुराणे युधिष्ठिर श्री कृष्ण इसका महत्व का बारे में बोल रहा है जो हे प्रभु, आप ये जो एकादशी है कृष्ण पक्ष का जो एकादशी, इसका बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। इसलिए कृष्ण भगवान मतलब बोल रहा है, हे महाराज, महाराज बोल के संबोधन देख के बोल रहे हैं, आप जो ये ब्रतों का बारे में बोल रहे हैं इसका महत्व बहुत कुछ है। जो लोग जैसा इसका बारे में मतलब दान युक्त यज्ञादि करेगा उसमें ही मैं संतुष्ट होऊंगा। तो कृष्ण भगवान फिर से बता रहे, पौष महीना का कृष्ण पक्ष के एकादशी का जो नाम है सफला। जैसा नाग जो है, सांप जो होता है, सर्प जो होता है, उसका मतलब सबसे विषधर सांपों में से होता है शेष नाग। और पक्षी जो उसमें से भी श्रेष्ठ जो है वो है गरुड़। और मनुष्य में से जो है वो है ब्राह्मण। और देवता में से जो है वो है नारायण श्रेष्ठ। इसलिए भगवान इधर बता रहे, सबसे श्रेष्ठ ब्रतों में से जो है वो है एकादशी ब्रत। और जो लोग इसका मतलब पालन कर रहे हैं वो मेरे सबसे मतलब अनंत प्रिय है। और ये जागरणी में धन लाभ तो उसको होता है, उसका बाद उसको मुक्ति भी लाभ होता है। पहले जमाने में क्या होता था, हजार हजार मतलब बहुत साल में तपस्या करता था लोग जाके जंगल में, उसका जो फल मिलता था, ये एकादशी सफला एकादशी का रात्रि में जो लोग भगवान का नाम गुणगान करेगा ज़्यादा से ज़्यादा,
उसको वही फल अनायास में मिल सकता है। इसका बाद मैं इसका महत्व के बारे में पहले देखता हूँ। बांग्लाते মহিষিত নামে এক রাজা প্রসিদ্ধ চম্পাবতী নগরে বাস করতেন। রাজার 4 পুত্র ছিল, কিন্তু তার জ্যেষ্ঠ পুত্র লুম্বক সর্বদা পরস্ত্রীগমন, মদ্যপান প্রভৃতি অসৎ কার্যে রত ছিল। সে সর্বক্ষণ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবতাদের নিন্দা করত। পুত্রের এই আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে রাজা তাকে রাজ্য থেকে বার করে দিলেন। স্ত্রী, পুত্র, পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্ত হয়ে সে এক গভীর বনে প্রবেশ করল। সেখানে কখনো জীব হত্যা, আবার কখনো চুরি করে জীবন ধারণ করতে লাগলো। কিছুদিন পরে একদিন সে নগরে প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ল, কিন্তু রাজপুত্র বলে সে অপরাধ থেকে মুক্তি পেল। পুনরায় সেই বনে ফিরে গিয়ে জীবহত্যা ও ফলমূল আহার করে দিন যাপন করতে লাগলো। ওই বনে বহুত বছরের পুরানো একটু বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেখানে ভগবান শ্রী বাসুদেব বিরাজমান বলে বৃক্ষটি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। সেই বৃক্ষতলে পাপ বুদ্ধি লুম্ভক বাস করত। বহুদিন পর তার পুণ্যজন্মের কোনো পুণ্য ফলে সে পৌষ মাসের দশমীর দিনে কেবল ফল আহারে দিন অতিবাহিত করল। কিন্তু রাত্রিতে অসহ্য শীতের প্রকলে সে মৃত্যুপ্রায় হয়ে রাত্রি যাপন করল। পরদিন সূর্যোদয় হলেও সে অচেতন হয়ে পড়ে রইল। দুপুরের দিকে তার চেতনা ফিরল। ক্ষুদ্রতা নিবারণের জন্য সে অতি কষ্টে কিছু ফল সংগ্রহ করলো। তারপর সেই বৃক্ষতলে সে পুনরায় विश्राम करते लागलो। इसका हिंदी मीनिंग्स मैं बताता हूँ। मोहिसीता नाम का एक मतलब राजा था, प्रसिद्ध राजा। वो चंपावती नगरी में बास करता था। वो राजा का 4 पुत्र था और उसका जो पहला वाला पुत्र ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था लुम्भक। वो क्या खराब कर्मों में ज़्यादा लिप्त होता था। पर स्त्री का मतलब खराब कर्म करने का मद्यपान नेशा जातीय जिनिस जो है वो करता था। वो असत कार्य होता है, इसलिए वो और भी उसका खराब गुण था। एवरी टाइम क्या करता था, ब्राह्मण लोगों का, वैष्णव लोगों का, देवता लोगों का निंदा मतलब खराब खंडन करते रहता था। ये पुत्रों का आचरण में कुद्र होके राजा उसका वो जो मतलब लड़का है उसको मतलब निकाल दिया मतलब राज्य से। और वो लुम्बक क्या किया, वो सबको छोड़ के जंगल में चला गया, गंभीर जंगल में चला गया। और उधर जाके वो क्या करता था, जीव हत्या, पानी हत्या करके खाता था और चोरी करता था। ऐसा करते करते उधर का नगरी जो है, जिधर जंगल में गया वहाँ का जो पहाड़ी लोग होता है वो उसको पकड़ लिया क्यों, और उसने बताया जो मैं राजा का पुत्र हूँ, इसलिए उसको मुक्त भी कर दिया। पुनराय वो लुम्बक जो है वो फिर जंगल में गया, जीव हत्या फल मूल आहार करके मतलब जीवन यापन कर रहा था। वही मतलब वन में एक बहुत पुराना विशाल असत्य वृक्ष जो था उसके अंदर वासुदेव विराज करता था। वो वृक्ष का देवत्व बहुत अच्छा था, मतलब वो वृक्ष में वासुदेव कृष्ण भगवान का मतलब बसवास होता था। से वृक्ष स्थल में लुम्बक उधर जाके सोया रहता था और उसका बहुत पूर्ण जन्मों का एक पूर्ण फल भी था, इसलिए वो झाड़ का नीचे विश्राम करता था। उसका पूर्ण जन्म का कोई अच्छा फल था। और पौष महीना का दशमी का दिन उसने क्या किया, आहार करने के लिए अतिवाहित तो मतलब आहार करने के लिए फल फूल लेके आया था। और प्रचंड ठंडी का मौसम है पौष महीने का,
तो क्या है, प्रचंड ठंडी का मौसम में उसका शरीर में थोड़ा बीमार जैसा हो गया, वो मतलब सो गया। और दोपहर का टाइम में वो उसको चेतना आया, उसका बाद दिन दोपहर का टाइम में उसको चेतना आया। उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा भूख भी लगा और फल संग्रह किया। उसका बाद मतलब वृक्षतले पुनराय विश्राम करने के लिए मतलब वो विश्राम कर रहा था। रात्रि में खाद्यभावे दुर्बल होकर पड़ने का साथ साथ पान न खाते ईश्वर को उद्देश्य फल राशि जितना सारी सा और भगवान को निवेदन किया। ओके, उसके बाद मैं बांग्लाते देखता हूँ। मतलब রাত্রিতে খাদ্যভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ল। সে পান রক্ষার্থে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফলগুলি নিয়ে, হে ভগবান আমার কি গতি হবে বলে অশ্রুপাত করতে করতে সেই বৃক্ষমূলে সে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ আপনি প্রসন্ন হন বলে নিবেদন করল। এইভাবে সে অনাহারে অনিদ্রায় সেই রাত্রি যাপন করল। ভগবান নারায়ণ সেই পাপী লুম্ভকের রাত্রি জাগরণকে একাদশী জাগরণ এবং ফল অর্পণকে পূজা বলে গ্রহণ করলেন। এইভাবে অজ্ঞাতসারে লুম্ভকের সফলা একাদশীর ব্রত পালন হয়ে গেল। প্রাতকালে আকাশে দৈববাণী হলো যে, পুত্র তুমি সফলা ব্রতের পূর্ণ প্রভাবে রাজ্য প্রাপ্ত হবে। সেই দৈববাণী শোনা মাত্র লুম্ভক দিব্য রূপ লাভ করল। তার পাপ বুদ্ধি দূর হলো। সে পুনরায় নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করল। স্ত্রী পুত্র সহ কিছুকাল রাজ্য সুখ ভোগের পুরো পুত্রের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে সে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করল। অবশেষে মৃত্যুকালে সে অশোক অভয় ভগবানের কাছে ফিরে গেল। হে মহারাজ, এভাবে সফলা একাদশী যিনি পালন করেন তিনি জাগতিক সুখ ও পরে মুক্তি লাভ করেন। এই ব্রত যারা একাদশীশীল তারাই ধন্য, তাদের জন্য সার্থক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ব্রত পাঠ ও শ্রবণে মানুষের রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এই হচ্ছে सफला एकादशी व्रत महत्व। इसका बाद मैं हिंदी में बोलता हूँ। वो लुम्भक वृक्षतल में सोया रहता था। उसका बहुत भूख लगा, उसका खाने को भी कोई मतलब पावर नहीं था, माने शक्ति नहीं था। और रात्रि में क्या हुआ, नहीं खा के दुर्बल होके मतलब सोया रहा। और भगवान को मतलब उद्देश्य करके जो फल वो लेके आया था, वो बोला जे हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा क्या गति प्राप्त हो सकता है। और क्या, वो रोने लग गया। मतलब रोते रोते ये बात बताया वृक्ष मूल में, मतलब वृक्ष का सामने। और कृष्ण भगवान लक्ष्मीपति नारायण जो है वो प्रसन्न हो गया। उसका वो जो फल निवेदन किया ना वृक्षतल में, तो वो प्रसन्न हो गया। ये भावे से अनाहारे निद्रा से रात्रि जापन किया, मतलब कुछ भी नहीं खाया, अनाहार था, निद्रा था, वो रात्रि जागरण किया। भगवान नारायण जो था वो बोला, हे लुम्भक, तुम्हारा जो ये जागरण का फल बहुत अच्छा फल मिल सकता है, क्योंकि ये जागरण में और मेरे को जो फल फूल दिखाया वो आपको एकादशी का फल मिल गया। वो अर्पण करने का बाद पूजा भी ग्रहण कर लिया। मतलब ये हम लोगों का जो नारायण जी है, ये भावे अज्ञातसार लुम्भक सफल एकादशी का व्रत पालन किया। और प्रातकाले आकाश में दैववाणी हुआ, हे पुत्रो, आपका जो फल व्रतों का पूर्ण हुआ तो आप एक राज्य आप प्राप्त होगा, आपको एक राज्य मिल सकता है। वही दैववाणी सोना मात्र सुनने का साथ साथ लुम्भक दिव्य रूप लाभ कर लिया। मतलब वो सुनने का साथ साथ उसका मतलब पावर आ गया, दिव्य रूप वो लाभ किया। उसका बाद पाप बुद्धि दूर, उसका जितना पाप राशि है, जितना उसने पाप किया था, ये फल एकादशी का फल लाभ करने से वो दूरीभूत हो गया, उसका पाप नहीं रहा। और पुनराय वो निष्कपट राज्य लाभ कर लिया, पुनराय एक राज्य लाभ किया। और स्त्री पुत्र सह राज्य सुख भोगे मतलब काम करने लगा। उसका बाद उसका पुत्रों को राज्य को भार देख के
उसने क्या किया, संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। मतलब इसलिए लुम्बक का जो ये मतलब पाप राशि खत्म होने का साथ साथ उसको मालूम चल गया जो मेरे को ये राज्यों से और कुछ काम नहीं है, मैं संन्यास आश्रम ग्रहण करने का साथ साथ भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। इसका बाद उसका मृत्यु भी हो गया। वो क्या हुआ, वो किसमें गति प्राप्त हुआ, अशोक भाई भगवान का पास वो चला गया। तो हे महाराज, कृष्ण बोल रहे हे महाराज, ये भावे सफल एकादशी जो लोग पालन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जी, जो आदमी लोग ये सफल एकादशी पालन करेगा वो ये जड़ जगत, ये मेटीरियल जगत जो है इसमें भी सुख शांति में रह सकते हैं, और मतलब ये जड़ जगत छोड़ने का साथ साथ भी उसको मुक्ति भी मिल जाता है, मतलब भगवान को प्राप्त हो जाए। ये वो तो जो लोग श्रद्धा सहकार में पालन ही करेगा उसका तो फल होगा और उसका जन्म भी सार्थक होगा, और ये इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान इसमें कोई डाउट नहीं है। ये वो तो पाठ मतलब जो लोग पाठ कर रहे हैं उसका तो फल मिल रहा है, और जो लोग शोभन कर रहे हैं वो भी कैसा फल मिल रहा है, राजस्व यज्ञ का फल। जैसा कोई कोई यज्ञ करता था बहुत सारी, तो उसमें से जो राजस्व यज्ञ है वो एक मतलब बहुत अच्छा यज्ञ है, तो उसका जितना फल राशि है सब कुछ मिल सकता है एकादशी पालन सुनने का और पाठ करने के साथ साथ। तो यही है सफला एकादशी का महत्व। और जो लोग ये मैं दुबई का टाइम में बोल रहा हूँ क्योंकि ये एकादशी है 7 जनवरी संडे का दिन, और मंडे का दिन इसका पाडनी का टाइम है 7:07 से और 10 मतलब 38 मतलब 30 और 8 क्या बोल 38 ओके इसका टाइमिंग है। तो ये जो मतलब एकादशी जो आदमी लोग सुन रहा है उसका तो फल हो रहा है, और जो लोग मतलब उसका गुणगान कर रहे हैं मतलब पाठक कर रहे हैं उसका भी ज़्यादा फल हो रहा है, और जो लोग एकादशी वो तो पालन कर रहे हैं उसको तो सबसे ज़्यादा फल मिल रहा है। तो हर आदमी को मतलब ये दुबई का टाइम में बोल रहा हूँ, हर आदमी को एकादशी पालन करने का, क्योंकि ये एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है। ये साल का नया साल जो 2024 3 हम लोग कसिंग कर लिया। आज का दिन मैं बोल